Pankaj Joshi. Okay, ma'am. Okay, so we Yes. should start. Am I audible to everyone? Just if somebody can raise their hand to just confirm that I'm audible. Okay, thank you. Uh, Good afternoon, everyone. On behalf of the ICSI Education School, the ICFA University Dehradun, I would like to thank you for joining us today for this special webinar on the World Environment Day. The World Environment Day is celebrated annually on the 5th of June and is the United Nations principal vehicle for encouraging awareness and action for the protection of the environment. It was first held in 1974. It has been a platform for raising awareness on environmental issues such as marine pollution, human overpopulation, global warming, sustainable consumption, wildlife crime, and anything else that can be put under this umbrella. World Environment Day is a global platform for public outreach with participation from over 143 countries annually. Each year, the program has provided a theme and a forum for businesses, non-government organizations, communities, governments, and celebrities to advocate environmental causes. To this extent, the university and the education school today has invited Professor Rajendra Singh. I will be introducing Professor Rajendra Singh in a while. I would first like to introduce Dr. Muddu Vinay, the Honorable Vice Chancellor of the ICFA University, Dehradun, and a certified academic leader by the Center for Academic Leadership and Education Management, also known as CALEM, under the Ministry of Human Resource Development. He has around 3 decades of rich experience in the field of education, training, planning, management, and consultancy. He is recognized not only for establishing institutions, but also leading them to excellence in academics and research with his path-breaking initiatives. He has been conferred the Vice Chancellor of the Year Award in the year 2020 by the Uttarakhand State Council for Science and Technology, Government of Uttarakhand. Thank you for your presence, sir. Sir, I would now request you to share some motivational words. Good afternoon to Dr. Rajendra Singh, and he is also called as Jal Purush. And we are very thankful to Dr. Rajendra Singh for accepting the invitation be with us today. And we are very thankful, and you are welcome to the ICFA University Dehradun, which is conducted this program by ICFA Education School. And my welcome to all my colleagues, Dr. Meena Bhandari, Atulya Verma, and the anchor, today's anchor, Mr. Pankaj Joshi, and Dean of Law School, Egul Kishore, Academic Coordinator Sanjeev Kumar, and Dr. Ankita Srivastav, and other my colleagues. I think that today, because Dr. Rajendra Singh, an expert in the environment, especially talking about today the Environment Day. Now, as you know very clearly, the world is facing a lot of problems and the issues regarding these environment concerns. I think it's a better Dr. Rajendra Singh talk about the issues and what is happening in the world. And my students of school education will be knowing about that, and they can take this to the level from the 0 level onwards to all the students. Again, I welcome Dr. Rajendra Singh, who had accepted our invitation to be there with us in ICFA University. Namaskar, sir. Welcome. Thank you, sir, for those kind words of yours.
I would also take this opportunity to welcome Professor Yugal Kishore, the Dean of the ICFI Law School. Thank you for being here with us today, sir. Without much ado now, I would move ahead with the proceedings of the day, and I would now like to introduce our chief guest or our speaker for the day, Dr. Rajendra Singh, who is popularly known as the Jal Purush or the Waterman of India. Dr. Rajendra Singh is a renowned river rejuvenator and environmentalist. Dr. Singh is an Ayurveda graduate and a postgraduate in Hindi literature. For his work, he has been awarded honorary doctorate degrees by the University of Agricultural Sciences in Dharwad in Karnataka 2014, Purnima University Jaipur in 2016, and from the APJ Abdul Kalam Technical University Lucknow in 2019. Dr. Singh has been awarded the prestigious Ramon Magsaysay Award in 2001 for community leadership and was given the Jamna Lal Bajaj Award for the use of science and technology for rural development in 2005. He also received the received what is known as the Nobel Prize for Water, the Stockholm Water Award in 2015. When Dr. Singh was practicing Ayurveda in Bhikampura and the Gopalpura villages in Alwar, he noticed that a lot of people were suffering from malnutrition, neoplasia, and night blindness. While treating one of the patients, an elderly man named Mangu Kaka, Dr. Singh asked him the reason for so many people suffering from health ailments. Mangu Kaka said that the health problems in the villages were due to lack of water. And Dr. Singh shares, he said that if I was really worried about the villagers, I should rather work on helping them get access to clean and wholesome water, because water was a bigger issue to address in rural Rajasthan than education. Dr. Singh says that he was taken aback when Mangu Kaka said that his treatment will not help them as they needed water. And it was that point that he decided to learn about water and work on bringing water to the barren villages of Alwar. He completed 2 PhDs in 2 days, one in environmental engineering and the other in geoscience. And there has been no looking back since then. Dr. Singh founded the Tarun Bharat Sangh, which was established in 1975. It is based in Bhikampura in the Tanagazi Tehsil of Rajasthan, Alwar. This organization has been instrumental in helping villagers taking charge of water management in their semi-arid areas through the use of Johad, rainwater storage tanks, check dams, and other time-tested as well as path-breaking techniques. Starting from a single village in 1985 over the years, TBS has helped and supported society to construct 11,800 water structures. More than 1,200 villages in the country are now water secure. As a result of their work, 12 rivers in the country have been revived. Keeping in view the reverse migration of rural youth, TBS has created job opportunities for more than 10,000 families, and more than 7,000 people have received food from their community kitchen, and training of people for environment in water conservation and reclaiming of wasteland is also going on. In 1991, Dr. Singh filed a PIL in the Supreme Court, which saved the Aravalli Hills and the forests in Delhi, Haryana, Rajasthan, and Gujarat. The devastation caused by mining for economic prosperity for a few gave way to greenery by conserving water and land and sustainable prosperity to many. The Water Ethics, Justice and World Peace Tour was initiated by Dr. Singh in April 2015. At the center of the Yatra were people who had become refugees as a result of water scarcity and who had moved to different parts of Europe. More than 20 countries in Africa and 20 countries in Central and West Asia and 20 in Europe were covered under this tour. Speaking on the challenges faced, Dr. Singh said that initially the government officials never bothered to understand the science of aquifers and the work that he was doing to conserve water. By the end of the year 2000, he received about 380 legal notices under the Irrigation Drainage Act 1954. But he says that he was not scared of these cases and worked hard with determination. In March 2000, the former President of India, Dr. K.R. Narayanan, visited a few villages where he was working in. And after this visit, all notices against him were pulled back, and since then,
He has not received any such legal notices. And of course, after the Magsaysay Award in 2001, many government institutions started inviting him for lectures and training on water conservation techniques. He has a life of over 44 years dedicated to society, provided solutions to issues of climate change, adaptation, and eradication through the efforts of local communities. I would now like to hand over to Dr. Singh, who will be addressing to us on this occasion of the World Environment Day. So welcome to you, sir, Dr. Singh. Thank you very much. Thank you. The first time I am listening in the introduction of my what I am speaking. So thank you really, Pankaj. So nicely you put the introduction. Uh, you know that in the introduction, who is giving the introduction, who not know anything but what he read and yes, but you speak really good. Thank you, Pankaj. Thank you, Madhu Vinayji, VC, and all friends and all officers. Uh, Today is really uh, a World Water Week, World Environment Week day, and योर यूनिवर्सिटी आपका विश्वविद्यालय तो प्रकृति और मानवता दोनों को इक्वल रेस्पेक्ट करता है, इक्वल रेस्पेक्ट टू द नेचर एंड इक्वल रेस्पेक्ट टू द ह्यूमैनिटी. सो आपका यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल अलग तरह का है, जो नेचर की नरिशमेंट के लिए भी चिंतित है. नहीं तो दुनिया में जो यूनिवर्सिटी हैं वो तो केवल 3 तरह की चीजें पढ़ाती हैं. एक तो पढ़ाती है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हु कैन लर्न मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड हु कैन एक्सट्रैक्ट and discharge from the underground aquifers. So mostly the university teaching to the students just the extraction and exploitation of nature. And the social science, they are not teaching. If you have a wisdom, if you have a indigenous knowledge system, so you can use with your labor, with the respect of your labor. And they never teach us कि भाई science with sense भी कुछ चीज होती है. The science with sense and technology and engineering with consciousness and concern, nobody teaching us. But I know your university is interested in this line, and your university is जब मैं पिछली बार आया था इन द लास्ट टाइम इन योर यूनिवर्सिटी, तब भी मैंने ये बात कही थी और मुझे आश्वासन हुआ था कि हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी नेचर के नरिशमेंट के लिए और ह्यूमन और नेचर दोनों को इक्वल राइट देकर हम कुछ आगे की एजुकेशन बढ़ाएंगे. इसलिए मुझे विश्वास है कि आपकी यूनिवर्सिटी में अब नेचर और ह्यूमैनिटी दोनों को इक्वल काम शुरू हुआ होगा. दोस्तों, मैं आज आपसे, मेरी हिंदी आपको समझ में आ रही है ना पंकज जी, वीसी साहब, यू कैन अंडरस्टैंड माय हिंदी? हाँ बिल्कुल. आई एम ऑलवेज वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी. ओके सर, समझ में आ रहा है. समझ में आ रहा है ना? बस हाँ, समझ में आ रहा है. बस इतना ही काफी है, समझ में आना चाहिए. समझ में आ रहा है. तो आज मैं विश्व पर्यावरण सप्ताह में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए आपके विश्वविद्यालय को बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो ग्लोबल चैलेंज है, वो ग्लोबल चैलेंज है क्लाइमेट का. और इस क्लाइमेट के कारण लॉट ऑफ पैंडेमिक और लॉट ऑफ आगे आने वाले समय में बहुत खतरे हैं. क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो आपका जीन पूल, आपका फूड चेन, सब का सब कुछ डिस्टर्ब होता है. इसलिए इस क्लाइमेट चेंज के कारण अभी जो पूरा ग्लोबल सिनेरियो है, उस ग्लोबल सिनेरियो में सेंट्रल वेस्टर्न एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज मोस्टली डिस्प्लेस हो रही हैं और वो यूरोप के शहरों में जा रहे हैं. ये जो डिस्प्लेस हुए लोग हैं
मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ पिछले 6 साल से कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किस तरफ इस दुनिया को लेके जाएगा। अभी जब अफ्रीका के लोग यूरोप के शहरों में जाते हैं तो पहले उनका बहुत रेस्पेक्ट था, दे 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 गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम यूरोप, बट नाउ द यूरोपियन से ओ दे आर द क्लाइमेटिक रिफ्यूजी, बिकॉज वो जो फोर्सली डिस्प्लेस होके आए हैं विदाउट वाटर और वाटर स्केर्सिटी, सो अभी बहुत टेंशन है। और अर्बन यूरोप का जो अर्बन है वो एक तरह से थ्रेटन फील कर रहा है इस डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्लाइमेटिक डिस्प्लेसमेंट के कारण। और जो गवर्नमेंट्स हैं वो ज़्यादातर इन्वायरमेंटलिस्ट की बात सुन नहीं रही हैं, वो केवल कॉरपोरेट की बात सुनती हैं। इसलिए इन्वायरमेंटलिस्ट और गवर्नमेंट और कॉरपोरेट के बीच भी टेंशन है। और इस टेंशन का एक बड़ा रीज़न ये है कि जो कॉरपोरेट ड्रिवन डेमोक्रेसी होती है उसमें उसमें केवल और केवल गवर्नमेंट कॉरपोरेट की सुनती है, अपनी जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा उनकी नहीं सुनती। तो नाउ सिनेरियो इज रियली वेरी टेंस्ड। और फॉर्चुनेटली इंडिया में अभी वैसा टेंस नहीं है। इंडिया में इंडियंस को जब यूरोप में जाते हैं तो क्लाइमेटिक रिफ्यूजी नहीं कहते, उनको इकोनॉमिक रिफ्यूजी कहते हैं। वो जो इंडियंस हैं वो बेसिकली वहाँ कमाई करते हैं और अपने देश में अपनी कमाई करके लेके आते हैं। तो हम इंडियंस जो हैं वो यूरोपियंस के लिए अभी भी वेरी यूजफुल, और वो हमें बहुत अभी भी रेस्पेक्टफुली देखते हैं। बट जोशी साहब, how long this process is going on, because हमारी जो वाटर स्केर्सिटी है उसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट है और जो ड्राउट और फ्लड इंक्रीज हो रहा है और जो मॉडर्न एजुकेशन की टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग है उसके कारण जो अंडरग्राउंड एक्यूफर्स ओवर एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवर ड्राफ्ट हो गए हैं। तो जिस कंट्री का रियल रिजर्व बैंक वाटर बैंक है, यदि आपके पास अपना वाटर बैंक नहीं है तो आपके रिजर्व बैंक में क्या होगा? 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर्स अवर ओवरड्राफ्ट। और इसका ओवरड्राफ्ट होने का कारण यह है कि हमने साइंस और टेक्नोलॉजी को और इंजीनियरिंग को डिसइंटीग्रेट कर दिया। पहले जब तक साइंस विद सेंस थी तो इंजीनियर भी अंडरग्राउंड एक्यूफर्स को रिचार्ज करने और एवोपरेशन लॉस को कंट्रोल करने में इंटरेस्टेड होता था। बट जब से ये एजुकेशन सिस्टम डिसइंटीग्रेट हुआ है, साइंस अलग, टेक्नोलॉजी अलग, इंजीनियरिंग अलग, तब से हमें अंडरग्राउंड एक्यूफर्स का हमारे इंजीनियर्स को पता नहीं होता, इसलिए वो मर्जी आए जिस तरह के डैम डिजाइन करते हैं। देखो, two type of the aquifers. One is the confined vertical fractures. The dam number 1 के नीचे जो एक्यूफर हैं वो confined vertical हैं, उनका पानी भी नीचे नदी में जाता है, और बाकी के नीचे जो हैं वो मिक्स्ड एक्यूफर हैं। तो यदि आपको ये पता है कि किस तरह के एक्यूफर्स को आप ठीक से यूज कर सकते हैं, तो आपको जानना पड़ेगा कि एक नदी में कितने तरह के एक्यूफर होते हैं और कितने तरह के हाइड्रोलॉजी कैरेक्टर्स हैं। ये एक नदी में 6 टाइप ऑफ द कैरेक्टर्स होते हैं। यदि आप उनको जान के काम करेंगे तो फिर कंजर्वेशन और डिसिप्लिन यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स ये आपके कैरेक्टर में आ जाएगा, और फिर आप कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट में लग जाएंगे। फिर आपकी कम्युनिटी आपके रिसोर्स मैपिंग करने लगेगी, एंड ऑल डिसीजन टेकन बाय दी पार्टिसिपेटेड बाय दी लोकल कम्युनिटीज। हमने 11,800 स्ट्रक्चर डैम बनाए, स्मॉल डैम्स, विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट और विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ कॉर्पोरेट, only by the community. So all dams
created by the community driven decentralized water management. Why the what is the way, the possibility of this? Because the community decide where we create the dam, and how much material we need and how much labor we need, and they choose the site selection. That site selection is very nicely, जहां कम खर्च करके ज्यादा पानी रोक सकते हैं. जैसे स्टीप स्लोप है, तो स्टीप स्लोप पे वो कॉन्वेक्स डिजाइन के डैम बनाते हैं. जहां नेचुरल डिप्रेशन है वहां कॉन्केव डैम बनाते हैं. जहां जेंटल स्लोप्स हैं वहां सीधा स्ट्रेट डैम्स बनाते हैं. तो ये जो उनकी नेचुरल इंजीनियरिंग है, इस नेचुरल इंजीनियरिंग के कारण हमने कुल 11,800 वाटर बॉडीज बनाई, जिनसे 2.5 लाख कुएं रिचार्ज हुए. यू कैन इमेजिन, यू कैन कैलकुलेट. And the all well recharged in a natural way. We never use the artificial fractured. Now we identify the natural fractures and we use the natural fractures in our water bodies. और ये 2.5 लाख कुएं रिचार्ज होने से 17,000 यूथ रिवर्स माइग्रेशन करके अपनी जमीन पर खेती करने लगा, क्योंकि पहले ट्यूबवेल, बोरवेल्स ऑल इज ड्राई एंड दे डिस्प्लेस्ड. नाउ बारिश को पकड़ा और धरती के पेट में डाल दिया और रिचार्ज हो गया, अंडरग्राउंड एक्वीफर रिचार्ज हो गया, एवोपरेशन लॉस रुक गया. हमारे काम की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि नेचुरल तरीके से हमने एवोपरेशन लॉस को कंट्रोल किया. आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स. पहले नदी सड़क की तरह यूज होती थी, अब ये नदी नदी की तरह बहती है. और ये दोनों फोटोग्राफ्स एक ही दिन के हैं, 15 साल पहले और 15 साल बाद, 20 फरवरी. दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है नदी का, ये बताता है कि जब पानी आता है तो धरती का चेहरा बदल जाता है और लोगों के चेहरे भी चेंज हो जाते हैं. और ये जो लोगों का विजुअल इम्पैक्ट था, ये साइंटिफिक इम्पैक्ट स्टडी में भी यही आता है. नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद ने हमारे काम का एक इम्पैक्ट स्टडी किया था. उनका कहना था कि इनकी जो वाटर बॉडीज हैं उन्होंने मिट्टी में मॉइस्चर रिटेन किया और मॉइस्चर रिटेन होने से ग्रीनरी इंक्रीज हुई और ग्रीनरी इंक्रीज होने से वहाँ का जो क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन और मिटिगेशन का प्रोसेस था वो बहुत फास्टली स्टार्ट हो गया. आप केवल एक लाइन पढ़ सकते हैं उनकी रिपोर्ट की. इमेंस इंक्रीज वेजिटेशन इज क्लियरली इन द रीजन. दोस्तों जब हमें बुखार होता है तो हम पैरासीटामोल खा के अपने माथे पे पानी की पट्टी रख के और आराम करते हैं. अब धरती को बुखार है ग्लोबल वार्मिंग के कारण. ये जो धरती का बुखार है, इस बुखार को ठीक करने के लिए भी हमें पानी की पट्टी रखनी होती है, मॉइस्चर करना होता है और इस मॉइस्चर से ही हमारी हरियाली बढ़ती है. दोस्तों इस हरियाली को करना है तो गांव से काम शुरू करके पूरा आपको रिवर बेसिन लेवल पे करना होगा. और ये जो ओल्ड स्ट्रक्चर को, न्यू स्ट्रक्चर को रिजुनेट करना होगा और ये सारा काम कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज तरीके से ही पॉसिबल है. दोस्तों हमने जो रिवर पार्लियामेंट बनाई, जब हमारी रिवर फ्लो करने लगी तो हमारी रिवर पार्लियामेंट ने कुछ ऐसे पैटर्न बनाए कि क्रॉप पैटर्न को रेन पैटर्न के साथ लिंक कर दिया. आप सब जानते हैं कि 87% पानी खेती में खर्च होता है. द 80% एक्सपेंडिचर ऑफ द वाटर ओनली इन एग्रीकल्चर. हमने उसको कंट्रोल किया. अब वो 47% एग्रीकल्चर में होता है और 40% पानी हमने नदी में फ्लो करने के लिए, रिवर फ्लो के लिए छोड़ दिया. ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ और स्किल डेवलपमेंट इन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, ये हमने एक वाटर लिटरेसी मूवमेंट चलाई. हम चाहेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी अपने इलाके में, देहरादून के आसपास, एक स्किल डेवलपमेंट इन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, इस पर कुछ काम करेंगे तो ये नेचर का नरिशमेंट होगा और ये जो वाटर स्कैर्सिटी की क्राइसिस है ये कंट्रोल होगी. दोस्तों ये लोग, ये महिलाएं पहले 9 किलोमीटर दूर पानी लेने जाती थी, 8 घंटे जाने आने में लगते थे, अभी तो 5 मिनट में पानी ले आती है. ये जो बड़ा परिवर्तन है. ही इज माई टीचर मांगू काका. ही इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ
tank. He create this tank. And जब ये इस दुनिया से जा रहे थे तब ये गीत गाते थे, मैं 2 बार नहाता था अब 2 बार नहाता हूँ, पहले साल में होली और दिवाली के दिन नहाता था, अब एवरीडे 2 टाइम बाथ, सुबह और शाम। सो ये व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। जब धरती का चेहरा बदलता है तो धरती पे हरियाली और लोगों को सुकून मिलता है। दोस्तों, आज यदि हमें इन्वायरमेंट डे मनाना है तो बस मैं 2 बातें कह के जल्दी से फिर आपके सवालों के लिए छोड़ता हूँ। ये जो सूरज है, इससे रेड हीट आती है। ये रेड हीट जब नंगी धरती पे पड़ती है, नंगी पहाड़ियों पे पड़ती है, तो वो रेन शैडो रीजन हो जाता है। बादल ऊपर उठ जाते हैं और फिर वहां बरसते नहीं है। और जब ये बादल समुद्र पे पड़ते हैं तो समुद्र के खारे पानी को डिसैलिनेट करके ब्लू हीट में चेंज कर देते हैं, जिनको हम क्लाउड कहते हैं, जिसको हम H2O भी कह सकते हैं। ये जो क्लाउड्स हैं ये ऑलवेज ग्रीन हीट की तरफ मूव करते हैं जहां जंगल है, और ये ब्लू हीट ग्रीन हीट के ऊपर आके दोनों एक साथ डिस्चार्ज हो जाते हैं, सेम टाइम डिस्चार्ज, द ब्लू हीट एंड ग्रीन हीट। और जब ये डिस्चार्ज होते हैं तो ये बैरन लैंड है, बैरन हिल है, उसकी जो हीट है वो मैनमेड रेड हीट है, वो बढ़ जाती है और फिर बादलों को बरसने नहीं देती। हमने इस इलाके में जो 11,800 वाटर बॉडीज बनाई, उनके कारण बारिश आने लगे ऐसा तो नहीं है। बारिश तो मॉइस्चर और हरियाली से आती है। तो हमने क्या किया कि जहां घने जंगल में बारिश होती थी उसको डाइवर्ट करके अपनी वाटर बॉडीज को पेरेनियल कर लिया। जो वाटर बॉडीज हमने क्रिएट की थी वहां तो रेन शैडो रीजन होने के कारण वर्षा नहीं होती थी, क्योंकि अरावली बिल्कुल बैरन हो गई थी माइनिंग के कारण। और मैंने फिर, आपने जोशी साहब बताया ये डिटेल में कि माइंस बंद की, और 7 मई 1992 को एक भारत सरकार ने कानून भी बनाया, अरावली को इको सेंसिटिव डिक्लेयर किया। उसमें से जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के कारण फिर हमारे लोग खेती करने लगे, और खेती करके वहां जो ग्रीनरी थी उससे ट्रांस एवोपरेशन हुआ, और जो हमारी वाटर बॉडी थी उससे एवोपरेशन हुआ, और फिर हमारे इलाके में भी क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हुआ, माइक्रो क्लाउड्स। और ये जो माइक्रो क्लाउड्स हैं, इन्होंने मैक्रो क्लाउड्स के साथ मिलना शुरू किया। देखिए हमारे इलाके में अब खूब अच्छी बारिश होती है। अब से पहले 3 बार बारिश हो चुकी है पंकज साहब हमारे इलाके में। सो नाउ दिस इज द बिग चेंज इन माय रीजन। और ये जो पूरी कहानी है, ये आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज के 2 इम्पैक्ट होते हैं, दोनों के दोनों गर्मी को ऊपर से नीचे धरती में नहीं आने दिया और टेम्परेचर नीचे हो गया। और दोस्तों ये काम तो हमारा बहुत छोटा है, कुल 10,600 स्क्वायर किलोमीटर में है, और 11,800 डैम ही कुल बनाए। लेकिन ये छोटा काम भी बड़ी परिवर्तन करता है, ग्लोबल परिवर्तन करता है। क्या परिवर्तन किया? हमारा जो काम था 38 ईयर का, रियली काम फॉर क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, उसने एक एग्जाम्पल इस्टेब्लिश किया, और उस एग्जाम्पल के आधार पर मैंने ये बोलना शुरू किया, वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर, वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर। आप जानते हैं हमारे भारत के ही एक आदमी क्लाइमेट चेंज की काउंसिल के चेयरमैन होते थे। मैंने उनको 2009 में अपनी ये एक्सपीरियंस बताना शुरू किया, लेकिन उन्होंने कहा, राजेंद्र देखो मैं जो हूँ, मैं तो एयर का साइंटिस्ट हूँ, मैं वाटर की बात नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें कोई वाटर का आदमी ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हारी बात को UN में ठीक से प्रेजेंट कर सके। तो मैं कहाँ वाटर का आदमी ढूंढूं, वो ये तो मैंने ही किया था, तो इसको प्रेजेंट करने वाले UN में। तो फिर मैंने ही कोशिश की UN के साथ, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में मिलकर, बोस्टन में MIT बोस्टन, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बर्कले,
इन सब के प्रोफेसरों ने मुझे बहुत मदद किया। और दोस्तों, मुझे लास्ट में बताते हुए बहुत खुशी है, आई एम वेरी हैप्पी, रियली हैप्पी, कि 2015 में COP21 मंथ ऑफ दिसंबर, हमारा ये नारा, हमारा ये स्लोगन UN ने ऐसे के ऐसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि 60,000 लोग पूरी दुनिया से ये बोल रहे थे कि वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर। जब 60,000 लोगों ने दुनिया के बोला, तो फिर COP21 में हिम्मत नहीं हुई कि उसको नकार दें। इसलिए मेरा कहना यह है कि हमारे छोटे छोटे काम भी ग्लोबल पॉलिसी को चेंज करते हैं, और ग्लोबल प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग जैसी ग्लोबल प्रॉब्लम को लोकली एड्रेस कर लेते हैं, लोकली हैंडल कर लेते हैं, लोकली ट्रीट कर देते हैं। तो हमने इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम से, इंडियन विजडम से इसको ठीक किया। मुझे खुशी है कि मैं आपके विश्वविद्यालय में आज दोबारा शामिल हुआ। आपके फाउंडर और आपके ऑल प्रोफेसर्स एंड ऑल मैनेजमेंट, रियली थैंक्स कि आप लोग थोड़ा अच्छी दिशा में काम करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, और ये जो ग्लोबल मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं इनके ट्रेडिशनल सिस्टम में, लोकल विजडम में, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम में और साइंस विद सेंस के साथ आप इनमें इनको रिजॉल्व करने में जुटे हैं। थैंक यू वेरी मच। पंकज जी, कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इफ एनी क्वेश्चन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राजेंद्र सिंह। ये बहुत, आपने जो बातचीत करी, मैं इसको व्याख्यान या लेक्चर नहीं, मैं इसको बिल्कुल बातचीत कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने ये पूरी बात रखी है, ऐसा लगा कि बिल्कुल आमने, और मैं समझता हूँ कि सबको ही ऐसे ही लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे पास कुछ लोगों ने 2-4 सवाल भेजे तो है, पर मैं अभी उन्हें कहने से पहले मैं चाहूंगा कि यदि ऑडियंस में से कुछ लोग अपने सवाल पूछना चाहें, हिंदी में या अंग्रेजी में, डायरेक्टली वो लोग कृपया अपने सवाल पूछ लें। यस। यस। ऋचा ठाकुर जी ने अपना हाथ उठाया है। ऋचा जी, आप अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछ लीजिए प्लीज। ऋचा, अनम्यूट करो, अनम्यूट। ऋचा, तुम म्यूट हो। हाँ, यस। Hi, sir. Very good Hi. afternoon. Good afternoon. I hope you're doing well. Yes. And it was very good to listen your words. And I really appreciate that you're doing like बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप हमारे environment के लिए. और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि environment के बारे में कौन सोचेगा. It's very good कि मैं आपके बारे में जान पाई आज. मैं डिटेल स्टडी भी करूँगी आपके बारे में. मेरे को ये जानना है सर, जैसे आपने अपनी इतने लंबे रास्ते में आप आए हो, 1975 में आपका एनजीओ स्टार्ट हुआ था, तो उसमें चैलेंजेस क्या फेस किए थे आपने बेसिकली, तो आप थोड़ा बता सकोगे ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि हम लोग कुछ स्टार्ट करें, तो आप यस, बता बता पाए। सकूंगा संक्षिप्त में, टाइम कम है जी इसलिए सर, सब बताना जी मुश्किल है। बिल्कुल। ऋचा, ओके सर। जब तुम काम शुरू करती हो, व्हेन यू स्टार्ट द वर्क, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आया करती हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उन प्रॉब्लम्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी मान के आगे बढ़ जाते हैं। मुझे बहुत प्रॉब्लम आई शुरू में। एक तो मैं पानी का आदमी नहीं था, पर्यावरण का आदमी नहीं था, मैं तो बेसिकली आयुर्वेद का आदमी था। अब आयुर्वेद के आदमी को आप पानी का काम में लगा दो, और मुझे पानी के काम में वहां के किसानों ने लगाया। उन्होंने कहा, राजेंद्र, हमें तेरी दवाई और पढ़ाई नहीं चाहिए, पानी चाहिए। तो तुम समझ सकती हो कि कितना मुश्किल होता है। बट वो जो यंग एज होती है ना, उसमें हमारा दिमाग बहुत तेजी से चलता है। यदि दिमाग के साथ साथ हमारा मन और हृदय भी थोड़ा धीरज से उसको थाम के चलता है,
तो ये प्रॉब्लम्स हमारे लिए सॉल्यूशन बनने लगती हैं। मेरे साथ ये अपॉर्चुनिटी थी कि मेरा दिमाग जल्दी तेज नहीं चलता था, मेरा मेरा दिल धीरज से सोचता था और धीरज से काम करने में मुझे चैन था। तुम इससे अंदाज लगा सकती हो कि 377 मुकदमे मेरे खिलाफ हुए। कोई एक मुकदमे से लोग डर जाते हैं, लेकिन मुझे क्या था, ये कॉन्फिडेंस था कि मैं जो कर रहा हूं उसमें मेरा अपना स्वार्थ नहीं है, मेरी सेल्फिशनेस नहीं है। मैं तो प्रकृति के लिए, नेचर के लिए और लोगों के लिए कर रहा हूं। इसलिए एक दिन जरूर आएगा कोई ना कोई, इस समस्या को समाधान आ जाएगा। वही हुआ ऋचा। तो इसलिए मैं तुमसे अभी समस्या के समाधान की कहानी सुनाने के बजाय मैं तुम्हें इतना ही कहूंगा कि यही उम्र है जो तुम्हारी उम्र है। जब भी कुछ नया सोचने और नया करने का, कुछ इनोवेशन क्रिएशन करना हो तो इसी एज में शुरू करना चाहिए और थोड़ा मन को धीरे से चलाना चाहिए। मन जो है वो आत्मा के साथ जरा स्लो चलेगा, तो जब हमारे हमारे ब्रेन का फ्लो स्लो होगा तो हमारा हार्ट फ्लरिश होने लगेगा। तो हमारे ब्रेन और हमारे हार्ट की जो रिलेशनशिप है वो हमें बहुत ताकत देता है। वो एनर्जी होती है, वो पावर नहीं होती ऋचा। पावर जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है। पावर हमें कॉन्शियसनेस, हमारे हमारी कॉन्शियस को हर्ट कर कम करती है, लेकिन जो आपके अंदर की एनर्जी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए मैं तुम्हें अपनी कहानी नहीं बताना चाहता कि मैंने कैसे किया, सिंपल यही बताना चाहता हूं कि तुम अच्छा मन में जब आए कुछ अच्छा करना है तो उससे डरो नहीं, लग जाओ। तुम लग जाओगी ना तो अच्छा हो जाएगा। बस तुम ज्यादा दूसरों से अपने रैशनल अनरैशनल दिमाग मत ज्यादा चलाओ। जब तुम रैशनल में दिमाग ज्यादा चलाती हो तो फिर जो रियल काम है उससे फिर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाता है और हर्ट हो जाता है। इसलिए तुम्हारे मन में जिस दिन आए कि अच्छा काम करना है, शुरू कर दो बस। भगवान जी आपकी मदद करेंगे। और तुम भगवान के बारे में जानती हो कौन है? मैं तुम्हें भगवान बताता हूं। भगवान का मतलब है ओके सर। जैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर। ये जो 5 एलिमेंट हैं ये हमारा भगवान है और ये हमारे साथ रहता है। ये किसी मंदिर मंदिर में नहीं रहता ऋचा। ना मंदिर में जाता है ये, ना मस्जिद में जाता है, ना गिरजाघर में जाता है, ना गुरुद्वारे में जाता है। ये तो इंसानों में रहता है और इंसानियत सिखाता है। इसलिए तुम इस भगवान को पकड़ लो, ये भगवान तुम्हें बहुत मदद करेगा। मंदिर मंदिर नहीं जाना और अपने भगवान को पकड़ के जरा धीरज से आगे बढ़ जाओ। थैंक यू ऋचा। थैंक यू सर। अब आशुतोष Waiting us. मिश्रा अपना सवाल पूछेंगे। Yeah, good afternoon, everyone. And first of all, I'd like to thank ICFI School for organizing such a wonderful event. Actually, we are so busy in our life that we hardly think of environment. That is very true. Although we all have the responsibility to do that, but we don't do it. And I am the part of this school also, as well as I am a vice principal in one of the leading recognized school there in Dehradun. So I was listening to sir and I was really motivated. First of all, I have two questions actually with sir. The first thing was that I wanted to know that if you go back in your childhood, do you really think that you have such thinking when you were a small child that you have to do something for this environment? Number one. And number two, I want to know that since I am a part of a school also, how can I motivate my children? Because I also believe a lot. Since I am little spiritual also, I feel that कि शिव ने भी जो है वो सती को इसीलिए अपने साथ धारण किया था क्योंकि सती भी पूरी प्रकृति थी। तो वो प्रकृति की ही वजह से उन्होंने उसको इतनी इंपॉर्टेंस उस समय दे दी थी शिव ने कि लोग समझें आज के जमाने तक कि जो प्रकृति है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एवरीबॉडीज लाइफ। लाइक लोग भूल गए बीच में आकर के कि क्या जरूरत थी उसकी, लेकिन हाँ
वही मैं जानना चाहता था कि हम लोग कैसे इस चीज को फिर से इनकलकेट करें अपने बच्चों में, जो स्कूल के बच्चे हैं। तो पहले तो आपका वो मोटिवेशन जो बैक आपके जो बचपन का होगा जिसकी वजह से आपको ऐसा हुआ, या आप सोचते हैं ये डेस्टिनी थी कि आपको ये सब करना था, और सेकेंडली है मैं कैसे मोटिवेट करूंगा अपने बच्चों को, ये दो चीजों पे आपसे मुझे थोड़ा सा। आशुतोष जी, मुझे बचपन में तो वाकई बिल्कुल मालूम नहीं था कि मैं इस रास्ते पर जाऊंगा। बचपन में हमारी बहुत बड़ी फार्मिंग थी, एग्रीकल्चर का काम। तो मेरा मन एग्रीकल्चर में बहुत लगता था, तो मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ एग्रीकल्चर करना चाहता था अपने घर पे। बट माय फादर नेवर इंटरेस्टेड कि मैं खेती करूं। वो चाहते थे कि नहीं, मैं सरकारी नौकरी करूं। तो जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो गया और मैं चला गया सरकार में, 4 साल रहा। फिर मुझे लगा कि यार मैं सरकार में क्यों हूँ, तो मुझे तो सरकार छोड़ देनी चाहिए, मैं तो सरकार से बड़ा काम कर सकता हूँ अलग होके। तो मैंने रिजाइन कर दिया और मैं फिर गोपालपुरा के गांव में चला गया। वहाँ जो लोगों ने मुझे सिखाया वो मैंने किया। बट मैं तुम्हारे सवाल पर आता हूँ। देखो, कई बार बचपन में मालूम नहीं होता, ये कई बार डेस्टिनी भी होती है, और कई बार आपके अंदर कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं जो आपको जब आप बाद में याद करते हैं कि यार मैं क्या ऐसा था बचपन में। तो फिर जब आप अपने बचपन को और अपने अपने मैच्योरिटी जब आपकी आ जाती है लाइफ में, उसको को रिलेट करते हैं तो आपको लगता है हाँ यार अपने अंदर कुछ क्रोमोसोम्स तो थे, कुछ ना कुछ था तो सही, कि हमें पेड़ों में ज्यादा इंटरेस्ट होता था। और हम जब खेतों में पेड़ लगाते थे तो हमारे फादर कहते थे, अरे यार तुम यहाँ चिड़िया आएंगी और ये खेत खा जाएंगी, तुम ये क्यों पेड़ ज्यादा लगा रहे हो, तुम्हें हर वक्त पेड़ों का पागलपन लग गया है। तो अभी हमें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हमारे अंदर कुछ था, कुछ अलग था। लेकिन मैं कह नहीं सकता कि मैं कुछ बचपन में कोई ऐसा मेरा इमेजिनेशन था। मुझे तो ये जो काम मैंने किया, मैं कह सकता हूँ कि माय टीचर इज ए ओल्ड फार्मर, illiterate farmer. He completed my PhD in 2 days, 2 PhD. So he is a real great teacher कि उसने मुझे मोटिवेट किया पानी का काम करने के लिए और प्रकृति का काम करने के लिए। तो मैंने उससे सीख कर ये पानी का काम किया। आप यदि अपने बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को या अपने अपने खुद के बच्चों को इस तरह के काम में लगाना चाहते हो तो उसके दो तरीके होते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इफेक्टिव तरीका होता है कि आप खुद उस तरह के काम करने लगो, और खुद काम करते करते दूसरों के साथ भी बातें करना शुरू करो। केवल काम से नहीं, जो आप काम कर रहे हो उस काम के साथ साथ दूसरों को मोटिवेट करने के लिए, दूसरों को एक एटमॉस्फेयर बिल्डिंग करने के लिए जरूरी होता है। तो पहले तो वैसा काम करो और खुद आपका करेक्ट। जब भी तो मैं कहता हूं कि प्रकृति और संस्कृति, भारत की प्रकृति और संस्कृति दोनों एक थी। हमारी मानवीय संस्कृति ने हमारी प्रकृति को भारतीय आस्था और पर्यावरण की रक्षा के रास्ते पर हमें चलाया था। इसीलिए तो हम जब अपने असली भगवान को जानते पहचानते थे, तब हम नीर नारी और नदी को नारायण मानते थे। मिश्रा जी, सही बात है, सही बात। नीर नारी और नदी को नारायण मानकर हम पूरी दुनिया को सिखाने के लायक थे। आज नहीं बचे। आज क्यों नहीं बचे? क्योंकि आज हम बोलते कुछ है और करते कुछ है। जब हमारी कथनी और करनी में फर्क होता है तब लोग भी देखते हैं कि यार ये बोल कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। इसलिए आशुतोष जी, आपके मन में जो ये बड़ी बात आई है, ये रियली ग्रेट, और अच्छे लोगों के मन में ही आती है। जिसको भगवान सद्बुद्धि देता है उसको ये अच्छी बातें आ जाती हैं। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आपकी जो प्रकृति है उसको इस संस्कृति के साथ, और आज आज की आपकी जो अपनी संस्कृति है उसको प्रकृति के साथ इंटीग्रेट करने की जरूरत है। तो फिर आपके अंदर भारतीय आस्था के अनुरूप पर्यावरण की रक्षा के काम आपके खुद के होने लगेंगे। और आप जिन बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं ना सर, मैं आपको लिख के देता हूँ, वो आपसे मोटिवेट होने लगेंगे। ये सिंपल तरीका है। अच्छा और सर। हाँ, और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज तो मोटिवेशन की और भी बहुत हैं, पर मैं उन पर आपके साथ बात नहीं करने चाहता। कभी जब मिलेंगे तब करेंगे।
अभी तो मैं केवल जो रियल एक सनातन जो सदैव जीने वाला रास्ता है वो ही ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज के विकास ने हमारा विनाश किया है और भारत को सनातन विकास चाहिए। सनातन विकास का मतलब होता है सदैव नित्य नूतन निर्माण करना, जिसमें डिस्ट्रक्शन ना हो, डिस्प्लेसमेंट ना हो, जिसमें एनक्रोचमेंट ना हो, पॉल्यूशन ना हो और ओवर एक्सट्रैक्शन ना हो। उसको हम कहते हैं कि ये सनातन विकास है। वो कभी मरता नहीं है, वो हमेशा जाता रहता है। तो आपको अपने बच्चों को उस सनातन विकास के रास्ते पर लेके जाना है। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Mr. Sanjeev Kumar, sir, please, your question now. Yeah, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Sir, myself, Dr. Sanjeev Kumar. I'm academic head in the Computer Science Department, ICFA University, Dehradun. यस, गुड। मैं सर पिछले 18 साल से अपनी जो मेरी होम टाउन है वो गुड़गांव रीजन है, वहां से मैं अलग अलग एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बाहर रहा। अच्छा, देहरादून में पिछले 12 साल से हूँ मैं सर। आपके 3 साल पहले जो सेशन मैंने अटेंड किया उससे बहुत सारी प्रेरणाएं मिली। अच्छा, और जैसे ही अतुल्य मैडम ने ये शेयर किया कि सर फिर से हमारे प्रांगण में आ रहे हैं और बच्चों को मोटिवेट करेंगे एनवायरनमेंट के लिए, मेरा सर एक हल्का सा आपसे सुझाव और सजेशन की और जरूरत है। थोड़ा काम किया हमने भी आपकी डायरेक्शन से, गाइडलाइन से सर। आपका जो एरिया है सर, जो अलवर एरिया, इसमें जो जिंदोले की घाटी बीच में पड़ती है, अलवर और खैरतल के बीच में जी। तो ये खैरतल का जो ये एरिया है सर, हमारे कुछ रिलेटिव्स यहाँ पे रहते हैं। जो कुछ गांव का नाम मैं आपको बता दूंगा, शायद आपको याद, कुछ गांव के नाम आप रिकॉग्नाइज कर पाए। हाँ सिवाना पाटन एक है, सैनपुरी, हाँ, ठाटड़ा बिल्कुल और बिल्कुल। या कुठली। मैंने ये सर, ये मैंने 7-8 गांव आइडेंटिफाई है। कर लिए। जी सर, ये 7-8 जो गांव है ये लगभग खैरतल से 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। जी। इन गांवों की जो लोकेशन है, जियोग्राफिकल लोकेशन, ये पहाड़ी के बिल्कुल तलहटी में बसे हुए गांव है। अच्छा, यहाँ का जो ग्राउंड लेवल जो पिछले 2 साल से और अभी तक 1-2 बोर लेवल हमने ट्राई कराया उधर, तो उसका जो पानी का जो लेवल है वो 700 फीट पे जाके बोर फिट हो रहा है। और वो फॉर्चुनेट इवेंट है, पानी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। यहाँ पे हमने सर आपकी उन जो मोटिवेशनल उसी हिसाब से रिलेटिव्स है, तो हमने 4-5 गांवों में जा जाके कुछ लोगों से इंटरेक्ट किया और हमने 2 टाका इस्टेब्लिश किए सर पिछले 2 साल में पाटन गांव में। अच्छा, जो टाका वर्ड आप जानते हैं, बाकी लोग, ये कुएं का छोटा रूप है जिसमें वो 30,000 कैपेसिटी का सर ये बनाया है। ठीक है। बारिश आने से उनका डाइवर्शन मूव करके वो इंस्टॉल किया, तो उनका नहाने धोने का पानी, वो मेरी बहन ही लगती है, वो दे आर यूटिलाइजिंग विद दैट। लेकिन बाकी सारे गांव वालों को हम उस लेवल तक मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। और वो क्योंकि आपका ही उदाहरण देके हम, क्योंकि आप इतने बड़े लेवल में उस एरिया को डेवलप किया है, 1808 800 जो वाटर पॉन्ड और जोड़ आपने बताए थे पिछले सेशन में, वो डेवलप करे, जिनसे कुओं को ऑटोमेटिक रिचार्ज मिला। हालांकि वहां पे कुएं सर नहीं रहे इस वाले एरिया में। तो ये एक थोड़ा सा विकट समस्या वहां पे अभी भी है पानी का। हालांकि वहां पे एग्रीकल्चर जो 8-10 बीघों के बीच में एक ट्वेल है, 15-20 बीघों के बीच में ट्वेल है, उससे उनको पानी मिल रहा है। पीने के पानी के लिए थोड़ा सा वहां पे दिक्कत है। उनके लिए सर वो कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम, वो थोड़ा पर्सनल उस हिसाब से कि वहां पे हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, तो हम भी जाते रहते हैं, आप पे उदाहरण देके उनको मोटिवेट करते हैं कि पेड़ लगाओ और किसी भी तरह से पानी जो बारिश का आ रहा है उसको रिटेन करना है। संजीव जी, आपके इलाके में बहुत संभावनाएं हैं पानी की रोकने की। मैं जिंदोली की घाटी के उस तरफ केवल ये जो सरिस्का का कोर एरिया वाला इलाका, बफर एरिया नंबर 3 है, उस इलाके में हमने पूरी एक वैली पे काम किया था और उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आया, नीचे रिचार्ज हुआ, क्योंकि वहाँ हमें बहुत अच्छे फ्रैक्चर मिल गए थे, कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स। तो ऊपर पानी रोका और नीचे के कुओं में, सब ट्यूबवेल में, बोरवेल में पानी हो गया। तो आप 2 तरीके कर सकते हैं संजीव कुमार जी। एक तो सरफेस के पानी को जो आपने टांका बनाया है, वो टांका बना के भी यूज करना बहुत अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं।
लेकिन यदि बड़े लेवल पर सबका भला करना है, कॉमन कम्युनिटी का भला करना है, तो फिर एक कॉन्टिन्यूटी में आपको ये जो बारिश की पानी है आपकी तरफ बहुत है भाई। बारिश के दिनों में पूरा पानी आपकी तरफ से बह के चला जाता है। मैंने अभी आपको एक स्लाइड दिखाई थी ना कि हमने सरिस्का का वो जो इलाका था हरियाला वाला, हमारा थाना गाजी और राजगढ़ का, उस तरफ का सारा पानी अपनी वाटर बॉडीज में डाइवर्ट कर लिया। तो तुम ये जो उस तरफ की पहाड़, जिंदोली की पहाड़ी के नीचे का जो फॉरेस्ट एरिया है, उसमें कुछ वाटर बॉडीज बना के उस पानी को इकट्ठा करके रिचार्ज कर सकते हैं। तो आपके ये जितने भी गांव तुमने बताए ना संजीव जी, जी सर, सबको पानी मिल जाएगा, सबको। तुम्हारे पास बारिश अच्छी है, बारिश अच्छी है सर, हमसे भी अच्छी थी बारिश भाई। तो आप ये काम थोड़ा देखिए कैसे कर सकते हैं। और कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना, जब आप इधर आ रहे हो तो मैं या तो मैं अपने किसी साथी को आपके साथ भेज दूंगा, नहीं तो मैं देख लूंगा। ठीक है जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसी थैंक यू काम सर। में हमें जुड़ के मदद करने में हमेशा अच्छा लगता है। गुड, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। घड़ी घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं धीरे धीरे। और जी। आपकी बातचीत में मुझे भी अपने बचपन की ओर आज खींचा, क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटा था तो उस जमाने में उत्तराखंड में, जब उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा हुआ करता था, यहाँ पर चिपको आंदोलन की बात हुआ करती थी और हमारे परिवार के कई लोग उस चिपको आंदोलन के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। तो बचपन के दौरान मुझे आज भी याद है, मैं एक बार मुझे सुंदरलाल बहुगुणा जी की गोद में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ, और उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए, अभी कुछ साल पहले की बात है, काफी समय पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी के साथ भी गुजारा, और आज सौभाग्य से आपके साथ भी कुछ समय गुजारने का हमें मौका मिला और बहुत कुछ आपसे सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। सारी अच्छी चीजें धीरे धीरे करके एक समय पर खत्म होती है, पर शायद इसे मैं एंड न कह करके इसे आज मैं एक शुरुआत कहना चाहूंगा हम सभी के लिए। तो आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। On behalf of the ICFI Education School, the ICFI University Dehradun, I convey sincere gratitude to Dr. Rajendra Singh, our Vice Chancellor sir, and Professor Yugal Kishore for taking out time from their busy schedule and making this program a success with their glorious presence. I also thank all the people, all the colleagues who have made this program a success. And last but not the least, our head of the department, Dr. Meena Bhandari, Ms. Atulya Verma, the academic coordinator, Ms. Swati Raturi, faculty associate, and Mr. Akhilesh for extending their constant support and assistance. We hope all of you have found this program informative. Till we meet next, please do stay safe and look after yourselves. Thank you very much. Thank you.